everyone. We are thrilled to welcome you to the special talk show organized in collaboration with Spotify Club and Balidan Club. Today is a momentous occasion as we also celebrate Spotify's first anniversary. To celebrate this special occasion, we are honored to have an exceptional guest with us. Please join me in welcoming Junior Warrant Officer Deepak Kumar, an Olympic level shooter and a highly esteemed active serviceman in the Indian Air Force. About our chief guest, Junior Warrant Officer Deepak Kumar was born in New Delhi and he completed his Bachelor's of Arts at Maharishi Dayanand University at Rohtak. Sir proudly represented India on numerous prestigious platforms, including the 2020 Tokyo Olympics, where he competed in the men's 10-meter air rifle. He also had brought honor to the nation by winning a silver medal at the 2018 Asian Games and a bronze medal at the ISSF World Cup. With 20 years of experience in shooting sports, he has represented India internationally from 2017 to 2020, an expert in 10-meter air rifle shooting and 50-meter rifle shooting. His journey exemplifies dedication, resilience, and excellence in the field of sports. And here are a few memories from Sir's participation. This is where he won a silver medal. And in Asian Games 2019 is quite special to him because this is where he won a bronze medal and he got his place in 2020 Olympic Games, which is quite phenomenal for any athlete in any sport. And of course, this must be special for him because he won a gold medal in the ISSF Shooting World Cup 2019 at Rio de Janeiro in Brazil. And the last memory would be the most special of all. This is the this is the epitome for any athlete to participate in the Tokyo Olympics 2020. Yes. So these are just a few of Sir's remarkable participation. Of course, he has won many medals. So yeah, today we have the unique opportunity to delve into his inspiring journey, learn about his experiences, and gain insights into the world of competitive shooting. Without further ado, let's give a warm welcome to JWO Deepak Kumar sir. Hello, Thank sir. you so for joining us. To start things off, could you share with us a bit about your journey from joining the Indian Air Force to becoming an Olympian? What was the inspiration behind it, sir? Uh, Sir, Sir, you are you on audible? mute. Sir, I think you are on mute actually. I'm sorry. No, sir, it's still No, sir. on. Yeah, you're actually on mute. Uh, Oh, I'm really sorry. I'm really sorry. Just a second. That was mine. oh, okay, okay. Sorry, sir, I was Okay, Himanshu okay. missing. Bhaiya, please unmute it. Okay, okay. Yes. Sir, we are so sorry for the inconvenience. I'm really sorry. I just muted all the participants, so there is no nuisance, and you got muted. Yes, sir. Really Please sorry. continue. Yes, now I'm audible, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yeah, So really. there are so many stories I can tell you, but in short, I have to explain the big story in a very short one. So journey, it's beginning from the small village from Delhi, Jagatpur village, and I was not that much of serious about shooting, and I was not serious about my career. But the thing is, destiny is taking us to the podium or goal. So, in this view, I can tell you, I enrolled in Gurukul in my childhood days in 1997 in Delhi only. So, the Delhi Gurukul is situated near about the AIMS, All India Medical Institute of Science, in Gautam Nagar. So, they opened some branches in Dehradun, in Faridabad as well. So I was quite good in studies. So my Guruji suggested me and advised me and given some orders to go to Dehradun. Because of Dehradun, Gurukul was made for the extra curriculum activities and extra studies. Like I can explain something about it. Uh,
in first year, the book is the read by some the first year students, but we as a Gurukulians, we are learning that book in sixth class only. Oh, So that was the extra studies based Gurukul. So they took me to the Dehradun. So journey, the phase was up to Delhi, and the second phase started with the Dehradun Gurukul. So in this view, I enrolled in Dehradun Gurukul as well. So at the same time when Gurukul was opened in Dehradun, and in the same time the Jaspal Rana Shooting Academy in Dehradun was also opened in same day or in same month, I think. So after that, the Jaspal Shri Jaspal Rana's father Narayan Singh Rana came to the Gurukul, and they were looking the scenario of Gurukul. They observed about our mental stiffness. They observed about physical standard, and they observed about so many things about discipline. So they suggested to the Guruji that you have to enroll some of his students to the shooting as well, because of they are having good mental status, they are having good physical standards, so they can do really good in shooting as well. So the thing was, I'm lucky in that I was the one who was in that group, and they took me to the shooting range as well. So starting was not that much of serious mode. It was like burden, because of I don't want to start sports, because of I was quite good in studies. So I was planning to pursue with the only studies, because. I can be a professor, Sanskrit professor through the Gurukul in DU or MDU or some other Gurukul Kangdi Vishwavidyalaya or some other Takshashila Vishwavidyalaya. So I was planning the shorter one, but the destiny or the plan of God, it was the bigger one. So in this case, the shooting has been started. I was going there, and I was just simply doing the time pass as well. So some times ago, some after some times, I started quitting of shooting because of my study was interrupting at that time. So Guruji was asking why you are not going to. So I told them I don't want to shooting because of I want to study, because of there was a huge explanations about Sanskrit Vyakaran, Sanskrit grammar as well. So I can say Sanskrit is a shorter one, shorter word, but the thing is the explanation is much more bigger as we can think. So Guruji said, no, 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 you have to do shooting because you have good physics, you have good mental status, you are having a good meditation aspect as well. So at that time, they beaten up me also that you have to start shooting again, because of I was having that much of ability, because of as in Hindi we heard about पूत के पाँव पालने में दिखाई दे जाते हैं. So the Guruji was like they were observing me that you can do as well. So they suggested me that you have to start shooting again, and you can excel. So I started shooting, but at the same year, I was in some surgery situations, like the appendix was burst inside the stomach as well. So uh, the situation was like life or death. So I was in hospital, and I was fighting with the death also, that I have to win over it. So Guruji was there, and they were saying, "Don't worry, you will be perfectly fine. I'm with you." And with the God grace, with the Guruji's grace, with the uh, parents' grace, I was fit and fine after some time, and started again shooting. So it was really memorable moment at that time, when I was in hospital, and I was thinking about I will be live or not. So in this case, the Guruji was standing beside me, and they were saying, "Don't worry, I'm holding your hand, and I will not let you go."
So they really inspired me and giving so much motivation about to live, because I was not hoping to live because of situation was very worst. Because of 2 days after bursting of appendix inside the stomach, I went to the hospital, and doctor was shocked about to see how he is surviving. So that was the turning point of my life when I was fit and fine, and I came to the Gurukul again back. So Guruji told me some words about the life and all. So they told me that God has saved you, and God wanted to God wanted to big thing from you. So I was like, I don't know what God wants or Parmeshwar wants, but I was like, okay, I will be like go with the flow and let it be where I will be moving around. So journey started again with the shooting. But 2007, I can say the brother from another mother who was died in Gurukul. So in some road accident, he went to some Gurukul's work, and he met an accident, and on the spot he was dead. So we were having a plan because he was a national archer, and I was also a national archer. I am like I can explain about. As you mentioned, I am a shooter only, but I want to mention here I am a national archer, I am a national kabaddi player, I am a national wrestler, I am a national yoga champion at that time. So I was having a good background of sports as well in archery also. So we were going like I told you, my brother from another mother, the Mr. Ajay. So we were going to participate in national championships in some other competitions. So we were having plan to make a good academy, we were having a good plan to make a good house as well. We will live together because he was belongs to Chhattisgarh, Odisha, and I was from Delhi only. So we were having a plan we will stay together, but it was not in God's plan. So the God has been given a good opportunity to him to go some other mother to a spirit of love. So in this, I was like so much demotivated, like there is no life situation and there is no hope. My brother has gone, and I don't want to shooting and all. So Guruji said again, you were having plan with him, yes, and you were having some other plans as well, yes. So why not you are the only one you can fulfill it? So I was like, okay, I can do, and whatever I will do, whatever I will achieve, and I will see in the sky, and I will memorize him, and I will say, see Ajay, what I did for you, and see Ajay, what we did for us. So you are not with me, but your memories are with me. So that was the turning point of life that I have to start with a good shooting. तो जैसे कि आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि समस्या उनके पास होती है जिसके पास उनका निदान होता है। ये सुन के ऐसा सच में लग रहा है कि सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन ढूँढना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आपका एक टिपिकल ट्रेनिंग डे कैसा होता होगा? जैसे कि आपने बोला कि आप पहले आर्चरी में प्रैक्टिस करते थे, कबड्डी भी किया आपने, इवन इन शूटिंग आपने पहले पिस्तौल से शुरू किया था, फिर राइफल में गए। वो चेंज कैसे आया और क्यों आया? Actually, the thing was like I was not having weapons. I was not having good bows and arrows, so that I could do good in archery as well. And there was no any platform in Gurukul situations like I can excel myself. But the thing was, we were having a good shooting academy near about the Gurukul, almost near about the 4 kilometers. So slowly interest was there, and I was indulged in shooting again. And I started very seriously mode when my Guruji took a rifle from Germany. They went to Netherlands, and from Netherlands to they went to Ulm, and that and from Netherlands to India. Very fastly at that time because of I believe
कि संसाधनों की ज़्यादा संख्या होने पे खिलाड़ी का जो एक जज़्बा होता है वो अच्छा नहीं हुआ करता। सो जैसे ही मुझे संसाधन, जैसे ही मुझे फैसिलिटीज़ मिली, उसके हिसाब से फिर मैंने अपने करियर को बढ़ाना शुरू करा और within a very short time, within a 7 or 8 month, I enrolled in Indian Air Force in 2007 as well. So that was the journey which was started with zero, and I become a hero with that. I can say that because of Gurukul is totally based on uh, donation based. Okay, so there was no that much of good facilities about to food, about to training, about to purchasing of good stuff of shooting like jacket and trouser and shoes, and daily based expenses were there like pellets and all. So Guruji was having a plan. They put 50,000 per month in my account for my expenses. They were not saying that you have to take from your home and all. So they were doing continuously whenever I was going outside for some competitions and all. So they were giving some amount of rupees and they were maintaining the 50,000 rupees in my account for emergency use. So if you want to buy a kit, if you want to buy a shoes, if you want to buy a glove or something else, you can buy easily. You will not be bothered about you are having or not that much of money. So they were continuously maintaining in my account, and they were giving the cash also. So it was the good start of my journey to be becoming zero to hero. Thank you so much for your brief answer, sir. Yes. Of all the things that you have done, like you have went into different sports and other stuff, but the most interesting thing for me is that you like did your education in a Gurukul. Many students nowadays are not fortunate enough to get that opportunity. So, Yes. so do you think that part like played a major role in you becoming whoever you are today? And like, do you think students like in the present generation should also adopt things like that to go to Gurukul rather than attending normal schools? See, the thing is, there are rumors, and I can say in Mughal Kalin time. So they destroyed our Gurukuls, they destroyed our curriculum activities, those were we were learning in Gurukul. And after that, the foreigners came to India with the Yeah. so many aspects were there. Takshashila was burned, and Takshashila library was burned also, and they took like major things with us, like they were saying like don't eat ghee, you will be fatty. So in earlier ages, the only ghee and milk was like amrit for the Indians, and they were saying don't go for the heavy breakfast. The farmers were going to the farming area, and they were coming after that doing some efforts, and also they were hungry and they were eating the lot of. So they tried to change our psychology from because of I can explain कि शरीर को खराब कर दो, ये सर उठा नहीं पाएंगे, और साथ में इनकी शिक्षा को खत्म कर दो. जब when foreigners went go back, so the Macaulay was there, and he wrote in diary or some book, we are going back, but we are giving the some poison to the Indians, like English, like a chai, tea. Yes. So they gave us, and we are continuously roaming around the parameter of English and tea. So, as an Indian, I can say I have observed so many times. There are so many, like I'm speaking in English also. So, if I want to fight with the foreigners, and also I have to be specific with the English. Otherwise, I will be saying in Hindi. So they will be like, okay, we don't understand about Hindi. So whatever say, we will not understand about it. So the thing is, they gave English and tea, and we are continuously giving daily based poison with us, and we are like continuously empty handed or cutted handed. So Gurukul situation was really good at that time, and I explain about the spirituality in Gurukul. Like nowadays, and the movie came, the Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan, and so some other actors also, the Gurukul.
Have you seen? Might be. So in that they were wearing the Western culture dresses, and they were like making girlfriend and boyfriend system in that movie. So in Gurukul, I was there, and I was not able to see the single new face with 6 months. We were roaming out around the within that much of 100 peoples only, and there were no any female, so that we can focus, we can do, because we were wearing like a white dhoti and kurta at that time. And why we were wearing the white one only? बिकॉज ऑफ कि जीवन के अंदर जैसे हम उस धोती कुर्ते को पहनते हैं, उसके ऊपर दाग लगेगा तो हमें उसे साफ करना पड़ेगा और दाग हमें दिखाई देता रहेगा, वैसे ही हमारे चरित्र को भी साफ रहना चाहिए कि कोई हमारे तरफ उस गंदगी की तरह देख ना पाए। जैसे कि हम सफेद कपड़े के ऊपर गंदगी को नहीं देख सकते, उसको साफ करने के लिए भागते हैं, वैसे ही हमारे चरित्र के ऊपर भी ऐसा कोई दाग न लगे। इसलिए हम गुरुकुल की उस शिक्षा पद्धति को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कि वो अंग्रेजी भी हो गई, जिसमें कि वो पाश्चात्य संस्कृति का जो कल्चर है आजकल। पहले के टाइम में, आई एम सॉरी टू से, काव्य मैडम बैठी हुई है यहाँ पर, आजकल जो यूनिवर्सिटीज वगैरह में देखा जाता है और जो पहले का समय हुआ करता था हमारा, तो उस समय पर जो पुरुष प्रधान हुआ करते थे, जो पुरुष हुआ करते थे, तो उनके शरीर के ऊपर सिर्फ एक धोती हुआ करती थी और गले में एक गमछा टाइप हुआ करता था। और जो हमारी समाज की स्त्रियां होती थी, वो हाथों को यहाँ तक ढक करके रखती थी, और घूंघट को आज भी राजस्थान में देखें तो फोटो खिंचवाते वक्त भी वो घूंघट को उठाते नहीं है। तो दैट इज द कल्चर कि पूरा का पूरा एक पहनावा, शरीर का कोई एक अंग हाथों के अलावा दिख ना जाए, ऐसा एक कल्चर हमारा चलता था। बट आजकल जो ये जो वेस्टर्न कल्चर हमारे देश ने पकड़ा है और बहुत तेजी से चल रहा है, तो उस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि जो हमारी स्त्री समाज है या स्त्रियां जो लड़कियां हैं, वो छोटे कपड़े पहन करके अपने आप को बोल्ड और सामाजिक व्यवस्था में रहने वाली बताते हैं। कोई अगर उनका हितैषी, उनका भाई या उनके घर का, परिवार का या गांव का कोई बंदा अगर ये बोल दे कि आपने छोटे कपड़े पहने हुए हैं, आप पूरे कपड़े पहनिए, तो बोलते हैं कि अपनी सोच को बड़ा कीजिए, आप हमारे चरित्र के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। सो इन दिस केस गुरुकुल ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि हम अपने जीवन को कपड़ों से सहित अपने चरित्र को भी साफ रखने की कोशिश किया करते थे, जिसमें हम संस्कृत पढ़ा करते थे, जिसमें हम वेद पढ़ा करते थे। जो आज हम वेस्ट बंगाल के अंदर सिचुएशन देख रहे हैं, तो वो वेस्ट बंगाल नहीं, बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशन देख रहे हैं, अगर यहाँ की शिक्षा पद्धति अच्छी होती तो शायद आज ये हमें दिन देखना ना पड़ता कि हमारे लाखों करोड़ों हिंदू बहन भाई वहां पर कट रहे हैं, उनका रेप किया जा रहा है, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, बल्कि उनको चेक किया जा रहा है कि भाई हिंदू है, मुसलमान है, अगर मुसलमान नहीं हुआ तो उसको वहीं की वहीं काट दिया जाता है। तो ये संस्कृति क्या है कि एक मानवता के अधिकार के तौर पर अगर हम देखें तो मानवता क्या है कि मनुष्य को मनुष्य की रक्षा करनी चाहिए, वहां तो वो पशुओं जैसा व्यवहार करने में जुटे हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति ही है जो हमें उन सब सिचुएशंस को सोचने के लिए मजबूर कर सकती है, विचारों में लेकर के आ सकती है, लॉजिकली हम उस तरफ बढ़े और उससे कुछ अच्छा निकाल करके लेकर के आए। गुरुकुल में आपने बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी दिखाई है। ये चीज आपने पहले से थी या आप इंडियन आर्म फोर्सेस में जाके आपने ये आई? गुरुकुल ने वो जो डिसिप्लिन मुझे दिया, एक सुचारू रूप से जिंदगी जीने का एक तरीका जो सिखाया, तो एयरफोर्स में ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत कुछ ज्यादा सिखाया गया, बिकॉज ऑफ कि वहां पर सभी को एक समस्या हुई कि ट्रेनिंग कैसे होगी, सुबह 4 बजे कैसे उठा जाएगा। तो आई वॉज यूज टू अबाउट इट टू अवेक एट 4 AM. So I was not having some issue to be a good disciplined boy, to be a good dedicated boy. So I was doing parade and all, I was doing physical and all, and I was continuously busy to be study how to be follow the Air Force rules and regulations, so that in future I will not be able to see any other awkward situations in my life. Thank you, sir. Like that details how much of a discipline like your early education has helped you out. Thank God my mom is not listening to this talk show. When you said you wake up at 4 AM, I woke up at 9 AM today. So, sir, I just have like one small doubt about your early life. Do you have you ever regretted that
You are called Junior Warrant Officer Deepak Kumar, but not Dr. Deepak Kumar, since you had interest in education early on, and there was also AIMS in Delhi. In future, you will be listening about Dr. Deepak Kumar as well, Oh, because wow. I am doing National Institute of Sports NIS diploma course in Bangalore now. So in the future, I will be pursuing about the PhD and all. So today I got a message from my well-wishers. So with this, with my achievements and also I can be a director in any sports university or any university. So if I will be director at that time, so I will be like more than doctor. So I can explain about in future you will be listening about Dr. Deepak Kumar as well. That's Yeah, great, sir. That's great. Is there something that you're not good at? Yeah, Kavya, you can ask the next question. जैसे आपके लाइफ में मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल रहा है, वो गुरु जी का ही हो या आपके मेंटर जो हैं मनोज कुमार सर का हो, ऐसे आप अभी जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो भी लिसनर्स हैं, सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, जैसा कि मैंने बहुत बार अपने गुरुजी का नाम लिया है कि आपको हर एक नुक्कड़ पे, आपको हर एक मनुष्य के रूप में कहीं ना कहीं एक गुरु का रूप देखने को मिलेगा। और गुरु कोई छोटा बड़ा एज से नहीं हुआ करता, सिर्फ और सिर्फ आपकी सीखने की क्षमता क्या कहती है वैसे हुआ करता है। बिकॉज ऑफ बेसिकली गुरु है क्या? गुरु माता पिता तो होते हैं, उन्होंने हमें पैदा किया, उन्होंने हमें ज्ञान दिया कि ये हमारे मामा लगते हैं, ये हमारे फूफा लगते हैं, ये हमारे सो मेनी रिलेटिव्स के बारे में हमें बताया करते हैं। बट एक गुरु होता है कि समाज क्या है, गुरु होता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। गुरु होता है आपको सही सन्मार्ग पर ले जाने वाला, कि जिससे कि फ्यूचर में आपका जीवन कहीं भी निरर्थक ना हो और आप आगे की तरफ बढ़ते रहें। तो गुरु एक जीवन में यूं मानिए कि सभी के जीवन में एक टॉर्च की लाइट की तरह अंधेरे में हुआ करता है, क्योंकि जो लाइट अगर जीवन में ना हो तो हम आगे बढ़ पाने में मुश्किल अपने आप को देख सकते हैं, मुश्किल हालातों में देख सकते हैं। क्योंकि एक गुरु के पास में बहुत सारे हमारे जैसे अनेकों विद्यार्थी निकल करके गए हुए हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरी एज अगर 30 साल है और 30 साल के मेरे क्लास के अंदर 10 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 30 into 10 300 ईयर्स हो गया। और 300 ईयर्स तो सिर्फ मेरी क्लास के हुए, एंड देन उनसे पहले भी उनके पास में कई सारे 30 ईयर्स के, 18 ईयर्स के, 28 ईयर्स के कितने स्टूडेंट निकले होंगे। सो दे आर हैविंग मोर देन आई थिंक 50,000 students experience. So you have to take like a good guidance from them, बिकॉज ऑफ उन्होंने जीवन के उन तथ्यों को जिया है, जीवन में उन्होंने कई सारे बच्चों के साथ में काम किया है कि वो हमें जो बता सकते हैं वो समाज के अंदर कोई नहीं बता सकता। तो उनके एक्सपीरियंस को हमें गेन करना है। और कई सारे देखो जर्नी सबकी अलग अलग होती है। कई सारे इंसान ये बोलते हैं, कई सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। ठीक है, यू हैव टू मेक योर ऑन पाथ, बट द थिंग इज अपने रास्ते पे बनाने पे थोड़ी सी समस्या ये होती है कि हमें ये नहीं पता होता कि गड्ढा कितना गहरा होगा और उस गड्ढे से निकलने में हमें समय कितना लगेगा। तो गुरु ही है जो ये बोलेगा कि गड्ढे में ना उतर के साइड की पगडंडी से निकल जाओ और अपना रास्ता बना करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ। बिकॉज ऑफ आई बिलीव कि जब तक आप लक्ष्य को देख नहीं सकते तब तक आप लक्ष्य को भेद नहीं सकते। जब तक आप लक्ष्य को देख नहीं सकते तब तक आप लक्ष्य को भेद नहीं सकते। जब आपको लक्ष्य नजर आने लगेगा तभी आपका लक्ष्य पर निशाना लगेगा। तो ये मेरा थॉट है। और आप लोगों को भी अपने जीवन के अंदर गोल सेटिंग करना चाहिए, और गोल सेटिंग बड़ी होगी तो हम गोल सेटिंग के आसपास पहुंचेंगे। पर गोल सेटिंग अगर हमने बड़ी रखी भी है तो टाइम टू टाइम वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो इन सब सिचुएशंस को दिखाने के लिए, बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक गुरु ही एकमात्र सूत्रधार हुआ करता है। जैसा कि मेरे जीवन के अंदर गुरुकुल वाले गुरु जी थे, फिर जब मैं एयरफोर्स में आया तो वहां पर मुझे मनोज कुमार सर के रूप में मिले। तो ये अक्सर कहा जाता है कि जो गुरु जैसा होता है
गुरु के साथ में उसके शिष्य के अंदर भी सेम वैसा ही व्यवहार देखने को मिलता है। तो जो मेरे गुरुजी थे उनके व्यवहार को मेरे अंदर देखा जा सकता है, अक्ष को देखा जा सकता है। और जो मनोज सर मेरे को बाद में दोबारा मिले, तो मनोज सर का जो कुछ अक्ष एक्सप्लेन करने का बोले या सिखाने का बोले, तो वो भी मेरे अंदर देखा जा सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुरु गुरु रह गए और चेला शक्कर हो गया। Thank you, sir. Thank you so much for a brief answer for a question. So let's talk about the most important thing, the Tokyo Olympics. How did it feel, sir? I mean, you just like spoke about the like the need for goal setting. Everyone should have a goal in their life. So like when you started shooting and when you like took that as a professional career, was your earlier aim to reach Olympics? And when you reached Olympics, like actually, how was it feeling? Did you feel like you reached the epitome of greatness, or like, yeah, something about it? In the beginning of my career, there was no aim, actually speaking, and frankly speaking. There was no aim to be a international shooter or Olympian and all. So I was those are listening me, and they were having some idea also with their destiny. So they wanted to be a good government job, right? So who want government job, they can raise your hand and they can put a okay sign. So if you want to be like a government job person, so with the government job you will be some limited limitations will be there. So you will not be able to explore yourself. So this is good because of the value of government job. So many people have faced in Corona situations. So who was having a government job? So amount was directly credited to the account on the first day of the month, and those were doing the private job. So they were not having that much of earning because of all companies were deducted so much amount, and they were lacking of surviving as well. So in this view, you have to take government job, but I want to mention that you have to uh, plan for the bigger one, like IAS, PCS and UPSC clear करो, so that आप कहीं पर अधिकारी बन के बैठोगे ना तो उसके मजे अलग हैं, और एक क्लर्क वाली जॉब करोगे तो उसके मजे अलग हैं। तो क्लर्क वाली जॉब में यस सर कहना पड़ता है बहुत सारे लोगों को, बट आईएएस और पीसीएस या यूपीएससी क्लियर करने के बाद में आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को यस सर नहीं कहने की जरूरत पड़ेगी। तो यू विल बी द हैंडलर of society, you will be the controller of society, because of as I am junior warrant officer in Indian Air Force, so I am having the limited power, and that is within the Indian Air Force boundary. But if someone is having a power of like a SDM, so the SDM is having a district power. So district power is much more bigger than the commander of any Indian Air Force or Army commander or some other Navy commander also. So if you will be planning for government job, so go for the higher rank one, so that you can enjoy the moment. Like your parents, your society will be more proud than some lower type jobs. So go for the higher one. Yes, many sir. people waiting जो सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, होप you guys get to clear it. And as sir said, it is with great power comes great responsibility. People will make sure that they take that power accordingly correctly. So you have an impressive career both as a junior warrant officer in the Indian Air Force and as a professional shooter. How do you juggle these responsibilities, and how has your military training helped you in your sports career? When I enrolled in Air Force, so I was the first recruit in shooting sports in Indian Air Force. So there was the responsibility as well, because of there was no support that much of, because of they enrolled us, and they were not having a good weapon as well. So slowly they were doing their work, and we were enhancing our skills and all. So physical standard and skill standards I was enhancing at that time. So in 2010 they took some German weapons also. So after that I was unstoppable.
So my journey started again, the third phase of my journey. And the same time, the Manoj Kumar sir came in Indian Air Force as a coach. So journey again started with from zero to hero. So in 2011 we met, and 2012 we took a national medal, and we took the promotion also in 2014. So slowly we were like gradually improving ourselves with the physical standard, mental standard, and as well the society standard. So there was no any name of Deepak Kumar, and though no one knows about Deepak Kumar, so I was trying to like I have to make my parents proud. They will be having some. They were having some opportunity to say my son in Indian Air Force, and I was giving them like my son is national medalist, and it was going higher slowly. In 2014, I took again medal. In 15, I took again medals. In 16, I came in Indian squad as well. So the journey was going to the sky. And being a Air Force member, I want to explain about the Air Force has given me freedom to fly high, and I took as an opportunity, and I fly high, and I was not visible to the normal peoples. What the changes has been done by the Deepak Kumar. So it was like continuously spreading the knowledge, continuously taking the knowledge, continuously learning from the peoples, continuously giving the efforts to the sports, continuously maintaining the discipline in Indian Air Force. So when I was wearing the uniform, so I was feeling like when I was standing in front of the mirror, so I was having some responsibility on my shoulders. So I was like, you are the soldier, and you are having a good responsibility about the Indian Air Force, and you have to excel in Air Force as well and in shooting as well. So same, I was wearing the shooting kits. Same, I was handling the my rifle also. So I was having like the sense of winning. So I was continuously trying to learn something new things, and started the learning new things, and I was continuously achieving something, so that the motivation was there. I am on right way. I'm on right path. So in 2016, I came to Indian squad. In 2017, I came to Indian team because of after Olympics in 2016, the Abhinav Bindra quit their game and they retired. And I was like, Deepak, one spot is vacant, and you are the one who can fulfill it. And I was the one who changed the Abhinav Bindra to Deepak Kumar. Wow. Great, sir. That, okay, that's really great. Like it's not really easy for it, like everyone to reach the goal that they set. And like Yes. talking about what you were saying earlier, how big is your mental health playing in these parts? I mean, like nowadays students are easily getting distracted using their mobile phones and other stuff. They're getting, their like attention span is coming down drastically. So like what do you suggest to the people who are watching this and to all the other students in the present generation, how to increase their attention span and how to stay focused in a particular goal? In this view, I could mention about I want to mention about I was the lucky one at that time when I was going to be a Indian team members. So I was not having this much of fun because of there was no that such kind of technology, and I was having Tata Docomo phone at that time, and we were having 3 minutes in 1 rupees called Tata. So I was only calling. So I was not having continuously busy with the watching the reels, watching the Facebook status, watching the WhatsApp status, and all. So I was lucky in that case. But I want to mention about future of India. Those are listening to me, that this is the very good thing if you want to use in good way, and this is the much more worst and bad thing as you can think.
Okay, if you want to busy like nowadays I'm in Bangalore and I have to study lot sports science and all. So I was like finding something in laptop and I was finding something with the phone also. So when I'm boring myself and taking my phone and starting watching the reels. So with the time span, I'm saying like I'm busy with reels up to 30 minutes, and I'm thinking what happened? My time vanished up. So this is the thing. If you want to achieve something, you want to use this one, so you can use in good way. Otherwise it will spoil your life and you will be like in future after 10 or 15 years and you will be regretting about yourself. That was the time I could learn so many things, but with this I was not able to learn because of that was the distraction. And if someone is having girlfriend boyfriend system in their life, so this is the interesting when all are smiling, right? So if you are having, don't worry, and I'm not saying that you have to stop everything, but the thing is, uh, when you are going to eat something, you are not eating this much of, and not you are eating like you are hungry. So give your hoping the your partner or not, I don't know, give that person time, but it should be the in limited time. Because of if you will spend your time with this, एक अच्छी बात बताना चाहूंगा, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, तो एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 24 इयर्स का मुझे शूटिंग में हो चुका और लाइफ का भी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका। तो हर एक इंसान के जीवन में ना वो इंसान चाहता है जो उससे ज्यादा अचीवर हो। लो अचीव वाले को कोई कुछ पूछता नहीं है और वो साइड में से ना नजरें फिरा करके निकल जाया करते हैं। तो अपने आप को उस लेवल का इंसान बनाओ, चाहे वो लड़की है सुन रही है कोई, चाहे कोई लड़का है, अपने आप को उस लेवल का बनाओ कि भाई वो सोचे बाद में कि मैंने इस इंसान को छोड़ करके गलती की। जैसे मेरे जीवन के अंदर भी ऐसी एक घटना घटी थी। आई वॉज इन लव एंड आई वॉज लाइक हैविंग सम प्लान्स विद हर and I was continuously asking that we will be planning or not, we are having a plan or not. So Aman Sagar is saying क्या खतरनाक बात की है सर ने, 100% ट्रू। तो देखो मैंने बहुत सारी बातें बोली हैं, सो डोंट वरी, आप शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी वर हैविंग अ गुड प्लान फॉर फ्यूचर। सो जब मैं एयरफोर्स का सिलेक्शन ट्रायल दे रहा था तो मैंने पूछा कि क्या हमारा फ्यूचर प्लान है, तो बोलती है कि हाँ है। तो जब मेरा एयरफोर्स का कॉल लेटर मेरे हाथ में आया तब मैंने पूछा कि देखो अभी फाइनल कर लेते हैं, नहीं तो फ्यूचर में कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं। तो शी वाज सेइंग नो वी डोंट हैव एनी प्लान फॉर द फ्यूचर एंड वी कांट मैरी। ओके, तो मैं ट्रेनिंग के लिए चला जाता हूँ अपने और वहां से वापस आता हूँ, तो फिर मैं एक बार और पूछता हूँ कि इफ यू आर रियली want to say that sorry or thank you, so you can this is the last time and I will not ask again. So she said no, I am not interested with this and you can go wherever you want. So I thought at that time कि तेरी खुदगर्जी का तू अंजाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। So in this view I want to mention that आपके जीवन में अगर कोई ऐसा सिचुएशन है तो आप अपने आप को, जैसे कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर मैं एक एग्जांपल आपके सामने बैठा हुआ हूँ कि मैं उस लेवल का खिलाड़ी बना कि आज वो अपने बच्चे की नजरों में देख करके शायद बोलती होगी कि तेरे पापा शायद वो होते, और अगर मैंने हाँ की होती तो ना, हाँ नहीं कही कोई बात नहीं, बट आज रिग्रेट जरूर होता होगा कि वो कहाँ है और मैं कहाँ। तो वो अपॉर्चुनिटी मेरी वाइफ को मिलनी थी, वाइफ को मिली, मेरे बच्चों को मिलनी थी, मेरे बच्चों को मिली। सो हर एक दाने दाने के ऊपर लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों के जीवन में अगर कोई है तो गिरे हुए इंसान के साथ में खड़ा होना कोई पसंद नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सक्षम इंसान के साथ में खड़ा होना सभी को पसंद होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस रखने हैं,
अपने एम से भटक करके रहना है और लाइफ में कुछ नहीं बनना है, तो यू कैन बिजी विद इट। मेरे सोना बाबू ने खाना खाया क्या, मेरे बाबू ने किया क्या, कुछ वट एवर जो भी आजकल निब्बा और निब्बी सिस्टम सोसाइटी में चलता है। सो इन सब चीजों से बचो, बिकॉज ऑफ अगर आप नहीं बच पाओगे तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट होगा, क्योंकि जो आपका समय होगा ना, जो आज के समय में चल रहा है, आप अपने आप को जीवन को कुछ बना सकते हैं, तो वो ये समय निकल चुका होगा और आप सिर्फ और सिर्फ पछतावे में रह जाएंगे और कुछ हाथ नहीं लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। यस, मुझे हम अभी फैमिली और के बारे में बात कर रहे थे। मेरे पापा इंडियन आर्मी में थे और उनके सिबलिंग में एक सिबलिंग जो है वो इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं और दूसरे कोस्ट गार्ड थे। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि महीनों महीनों तक कभी पापा को नहीं देखा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पेरेंट्स और आपके फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया आपको? तो देखिए, बचपन से जैसे मैंने बताया कि मैं 97 में गुरुकुल चला गया था, तो आई वॉज यूज टू अबाउट कि मुझे इतना ज़्यादा बॉदर नहीं होता है इन सब चीज़ों का, क्योंकि गुरुकुल ने इतना ज़्यादा मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे कठोर बनाया कि इन सब चीज़ों का कोई फर्क मेरे जीवन के ऊपर नहीं पड़ता है। बट फाइनली भूला भटका थका हारा इंसान कहाँ पर जाता है, वो सिर्फ अपने घर जाता है। तो घर पे भी ये सिचुएशन रही कि कई कई महीनों तक, बल्कि सालों तक, बल्कि मैं अपने छोटे भाई से 7 साल में मिला था। जब हम छोटे थे तो मैं गुरुकुल में था, वो हॉस्टल में था, तो जब उसकी छुट्टियां पड़ती थी तो मेरी नहीं होती थी, मेरी पड़ती थी तो उसकी नहीं होती थी। तो ये सिचुएशन हमारी रही, हम 7 साल में मिले और वो भी तब मिले जब मेरी जॉब एयरफोर्स में लग गई। तो सिचुएशन घर की तरफ से ऐसी रही बिकॉज ऑफ कोई ऐसा, देखो परिवार सबका मध्यम परिवार वाला भी होता है, उच्चतम परिवार वाला भी होता है और मध्यम परिवार से नीचे वाला भी होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा परिवार ऑलमोस्ट मध्यम परिवार में रहा और उस समय पर चीजें ऐसी भी रही कि मैं भी हॉस्पिटल में हूँ, मेरे चाचा जी भी हॉस्पिटल में हैं और सिर्फ देखने वाले मेरे फादर थे, और फिर भी चीजों को मैनेज किया कि कहीं बच्चा ना चला जाए, कहीं बाही ना चला जाए। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी लाइफ की रही, बट उन सब चीजों को पार करते हुए बिकॉज ऑफ भगवान के पास मेरे लिए प्लान दूसरा था, प्लान बी, सी और डी, आई डोंट नो कितने प्लान अभी भगवान ने बनाए हुए हैं कि एज ए गुरुकुल में रहना है, फिर एयरफोर्स में जाना है, एयरफोर्स से फिर मुझे शूटिंग जाना है, शूटिंग करते हुए फिर मेरे को ओलंपिक खेलना है, ओलंपिक के बाद में जो फ्यूचर प्लान है, अभी मैं NIS कोचिंग कोर्स करने के लिए आया हुआ हूँ, तो फ्यूचर में शायद इंडियन टीम के भी कोच बनूंगा, या मैं क्या पता किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ करके किसी सुनने वाले जैसे बच्चे हैं इनका भविष्य सुधारूंगा। तो पता नहीं कितने प्लान भगवान ने मेरे बनाए हुए हैं। तो उसी क्रम में सब चीजें चलती रही और मैं यहाँ तक पहुँचता चला गया। थैंक यू सर, थैंक यू so much. Sir, you have won a lot of medals on national level, on different state level. So, like which medal or which achievement do you think is the greatest that you have attained so far? देखिए, हर एक के जीवन में टर्निंग पॉइंट हुआ करते हैं। कोई एक मोड़ ऐसा आ जाता है जिसमें कि वो सक्षम भी हो जाता है और अक्षम भी हो जाता है। तो जीवन में मेरे भी आया एक पॉइंट, सडन पॉइंट आया बिकॉज ऑफ एशियन गेम्स सिल्वर मेडल, जिसने मेरे को समाज के अंदर एक पहचान बना करके दी, जिस मेडल ने दुनिया के अंदर एक तहलका मचा करके दिया, जिस मेडल ने शूटिंग फैमिली के अंदर एक क्रांति ला करके दी, जिस मेडल ने इंडियन एयरफोर्स के अंदर और बड़ी पहचान बना करके दी, जिस मेडल ने मेरे माता पिता को, परिवार को, CM को मेरे घर पे आकर के मुझे अवार्ड देना पड़ा। तो दैट वाज द मेमोरेबल इवेंट और टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ कि एशियन गेम्स में गए हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स का बताता हूँ पहले कि कॉमनवेल्थ गेम्स गया, वहां पर जा करके आई वाज द ओनली वन, और अभी तक भी मेरा वो कॉमनवेल्थ का रिकॉर्ड मेंटेन मैंने किया हुआ है। तो मैंने कॉमनवेल्थ का रिकॉर्ड बनाया बट मेडल नहीं लेकर के आ पाया ड्यू टू मैं 4th पोजीशन पे रहा वहां पर। तो वो एक आग दिल के अंदर थी, वो एक भूख दिल के अंदर थी कि अब की बार जो अगला मौका मिलेगा तो मैं अपनी एबिलिटी को दुनिया के सामने दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट इज दीपक कुमार। बिकॉज ऑफ एक खिलाड़ी का जीवन जो होता है, वो खिलाड़ी ऐसे ही नहीं बनता। खिलाड़ी के जीवन में अनेकों बार हार का सामना करना पड़ता है और हर हार के बाद में हम दोबारा से तैयार होते हैं कि वो जो अगली स्वर्णिम सुबह आ रही है उसमें हम किस प्रकार से अपने अपोनेंट की आंखों में आंखें डाल करके बोल सकते हैं कि मैं तुझे हरा करके दिखाऊंगा। बिकॉज ऑफ एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है।
एक हुक से दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, हम रातों को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। तो इन पंक्तियों से क्या कहने का मतलब है कि खिलाड़ी का जीवन बहुत ही संक्षिप्त और संवेदनशील हुआ करता है। हर हार के बाद में, जैसे अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच गई है और फाइनल में जाकर के 100 ग्राम 50 ग्राम वेट की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो एक खिलाड़ी का, वो तीसरा ओलंपिक खेल रही थी, तो जब पहला ओलंपिक खेला था उससे पहले भी 4-5 साल की तैयारी की होगी। तो जिस खिलाड़ी ने अपना 16 साल 20 साल का टाइम उस खेल में लगा दिया और लास्ट मोमेंट पे जाकर के उसके साथ में ऐसा हो, तो उसकी मन की स्थिति क्या होगी। तो जो मैंने ये लाइन बोली कि हमारे लिए तो कहना है कि भाई चलो डिस्क्वालीफाई होगी, पर वो जिस खिलाड़ी की मेहनत खराब हुई उस खिलाड़ी के मन में क्या चल रहा होगा। जो मैंने अभी पंक्तियां बोली कि एक भूख से दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, दिनेश फोगाट रातों को उठकर रोती है जब सारा आलम सोता है। तो ये पंक्तियां बहुत ज्यादा मतलब कि दिल को झकझोर देने वाली होती है। और फिर एक खिलाड़ी थक हार करके समाज के सामने या ओलंपिक कमेटी के सामने थक हार करके ये बोलता है कि बस अब मैं रिटायरमेंट ले लेती हूँ या ले लेता हूँ। अब मैंने जो ताकत लगानी थी, मैंने जो अपनी एनर्जी लगानी थी, वो एनर्जी लगा दी, बट ये समाज मेरी उस ताकत को या फिर उस एनर्जी को या मेरी एबिलिटी को या मेरी स्किल्स को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं अपना साइड में रास्ता करते हैं या करती हूँ और जा करके अपने घर में बैठती हूँ कि मुझे बार बार इन सब चीजों में फंस करके अपने आप को परेशान नहीं करना। बिकॉज ऑफ जो खिलाड़ी होते हैं ना, जो उच्चतम लेवल के खिलाड़ी होते हैं, एलीट लेवल के खिलाड़ी बोले या ओलंपियन बोले, और ये कहना चाहूंगा जो अभी सुन रहे हैं, खिलाड़ी पागल होता है। और आप लोगों के जीवन में अगर पागल की उपाधि आप लोगों को मिल गई तो समझना कि आपका जीवन सफल है। बिकॉज ऑफ कि जब मैं अपनी मेहनत पे पूरा भरपूर तैयारी में था तो लोगों ने मुझे भी पागल बोला, लोगों ने विनेश को भी पागल बोला होगा, लोगों ने नीरज चोपड़ा को भी पागल बोला होगा, लोगों ने अनेकों खिलाड़ियों को जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल का काम किया है सबको पागल बोला होगा। तो उन पागल बोलने वालों के लिए मेरे पास में एक लाइन है, इन बिगड़े दिमागों में खुशियों के लच्छे हैं, इन बिगड़े दिमागों में खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अगर इस पागलपन से भारत की पदक तालिका ऊपर जाती हो, अगर इस पागलपन से भारत का झंडा फहराने का मौका मिलता हो, अगर इस पागलपन से इंडिया की टी शर्ट, इंडिया का ब्लेजर पहनने का मौका मिलता हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी के सभी पागल बने, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागल बने। अगर लक्ष्य को पाने के लिए पागलपन आपके जीवन में नहीं है ना, तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, आप कहीं भी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, चाहे वो लाइन पढ़ाई की हो, चाहे वो लाइन खेल की हो। क्योंकि एक समय हुआ करता था पुराने टाइम में, हमारे माता पिता या हमारे गुरुजी वगैरह सब बोला करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। परंतु मेरे जैसे आला दर्जे के पागलों ने ना ये इन पंक्तियों को बदला है और इस समाज के सामने खड़े होकर के चौड़ी छाती के साथ में बोला है, माइक पकड़ करके बोला है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। तो आज हमारे खिलाड़ी लाजवाब बन के दिखा रहे हैं। मनु भाकर जो पिछले ओलंपिक में फेल हुई, उसके बाद में फिर उसने 2 मेडल लिए, तीसरा मेडल लेते लेते चूक गई। पीवी सिंधु ने 2 बार ओलंपिक मेडल लिए। मैरी कॉम जो पागलपन की हदों को क्रॉस करके बच्चे हो गए 3-3, उसके बाद में भी वर्ल्ड चैंपियन बन के दिखाया। MS धोनी बोले, विराट कोहली बोले, अनेकों खिलाड़ियों की श्रृंखला। लाइन से बोलना स्टार्ट करूं तो हमारा शायद 4-5 दिन ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसलिए पागल बनना है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, पागल बनना है कुछ चाह जो अपने मन के अंदर लेकर के बैठे हुए हैं वहां तक पहुंचने के लिए। तो अनेकों बार कितने ही खिलाड़ी एक्सीडेंट में हो जाते हैं, कितने ही खिलाड़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं भी ओलंपिक के टाइम पे जब गया तो 4 तारीख को मैंने कैंप में रिपोर्टिंग की है और इसके पीछे भी एक कहानी है कि मैं कोविड पॉजिटिव हुआ 2021 में। तो उस समय पर सिचुएशंस बहुत ज्यादा खराब थी। तो ये क्वेश्चन मेरा लास्ट में आएगा तो मैं उसी टाइम पे एक्सप्लेन करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पागलपन की हदों को क्रॉस कीजिए तो आपका जो लक्ष्य है शायद उस दरवाजे के पीछे हो जहां पर आप उसको खोलना नहीं चाहते। तो पागल बनो, इतने बनो कि सारी दुनिया की खुशियां तुम्हारे कदमों के अंदर आकर के टिक जाएं, कि खुद ही के ऊपर बुलंद इतना कि खुदा भी आके पूछे कि तेरी रजा क्या है। आपको बुलंद इतना करना है कि भगवान भी बोले कि और क्या दूं। जैसे नीरज चोपड़ा को आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या दे सकती है,
कोई अवार्ड नहीं। सुनील भाकर को क्या अवार्ड दे सकती है, अवार्ड कम पड़ रहे हैं। ऐसे ही जीतू राय, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग और पता नहीं कितने ही इस तरह के खिलाड़ी भारत ने दिए। उनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में अवार्ड कम पड़ रहे हैं कि उनको कौन सा अवार्ड बना करके दें। खेल रत्न दे दिया, पद्मश्री दे दिया, अर्जुन अवार्ड दे दिया, द्रोणाचार्य अवार्ड दे दिया, इसके ऊपर होता क्या है? कितने ही खिलाड़ी हैं, कितने ही ऐसे दूसरे लाइन के अंदर भी इंसान हैं जिन्होंने अपने देश का नाम मान रखने के लिए उस लेवल का काम किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में अभी अवार्ड की कमी पड़ गई है कि नया अवार्ड बनाना पड़ेगा, और उसको पाने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या होगा, वो सब चीज काम पे चल रही है। जैसे अभी हम ओलंपिक्स के बारे में बात कर रहे थे, आपने ये 2024 ओलंपिक्स के बारे में आपका कुछ व्यूज देना चाहेंगे? Especially about the fourth place finishes, because the internet is literally divided. That fourth place finish is really good because we are coming so close to the medal tally, and another section is saying like these are professional athletes, they have to know the value of coming third. So like what's your take on this, sir? ओवरऑल अगर हम 2024 पेरिस ओलंपिक्स की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, मेडल को हम रख देते हैं साइड में, बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स कम्युनिटी से हूं तो स्पोर्ट्स के बारे में, उन खिलाड़ियों के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा जिन्होंने सही में ताली बजाने वाला काम हमारे लिए किया है। बिकॉज ऑफ कितने ही मेडल हमारे फोर्थ पोजीशन पे रहते हुए छूट गए, और कितने ही, जैसे विनेश फोगाट का तो गोल्ड मेडल ही मैं कहूंगा, डिस्क्वालीफाई हुई है या नहीं हुई आई डोंट नो, बट मेरी नजरों में वो गोल्ड मेडलिस्ट है। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं 2, तो मेरी नजरों में गोल्ड मेडलिस्ट है। नीरज चोपड़ा ने एक ही अटेम्प्ट किया और उसमें सिल्वर मेडल ले लिया, दूसरों ने 6 लिए, तब भी वो सिल्वर नहीं लेकर के आ पाए, तो मेरे लिए वो गोल्ड मेडलिस्ट है। हॉकी ने जो जितना इफर्ट दिखाया लास्टली, तो उस हॉकी ने जो मेजर ध्यानचंद जी के समय से चलता हुआ आ रहा है कि हम हॉकी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे हैं अपने आप में, तो उस हॉकी के अंदर अपना भारत का परचम लहराने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अनेकों खिलाड़ियों के द्वारा जो 2024 में भारत की तरफ से कंटीजेंट बन करके गए थे, चाहे अविनाश सांपले हो, पारुल चौधरी हो, चाहे वो शूटिंग में अनीश भानवाला हो, विजय वीर हो, अर्जुन बबूता हो, अंजुम हो, तो अभी देखो ओलंपिक में जितने भी गए वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करके गए थे, और प्रूव करके ऐसा गए थे, उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे अपनी एक रैंकिंग बनाई थी, तब जाकर के वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो पाए। अब ओलंपिक में जाकर के वो कुछ गिने चुने ही तो इंसान होते हैं टोटल 50 शूटर्स के अंदर, टोटल 50 खिलाड़ियों के अंदर, कि जिनके गले के अंदर वो 3 मेडल आएंगे। तो आई बिलीव कि जितने भी हमारे ओलंपियन यहाँ से गए थे, ओलंपिक खेल करके आए, तो मेरी तरफ से वो सभी के सभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बिकॉज ऑफ उन्होंने इस मैच में तो थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, बट इससे पहले वाले मैच जितने भी थे उनमें अच्छा प्रदर्शन किया था, तभी वो वहां जा करके अच्छा प्रदर्शन कर पाए, क्योंकि गिरते वही हैं जो मैदान जंग में खड़े होते हैं। नाक कटवाने के लिए नाक होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर किसी की नाक ही नहीं है तो वो कटवाएगा क्या? तो वो हारने के लिए उस लेवल पे खड़ा होना जरूरी है। आज पूरा भारतवर्ष मेरे हिसाब से गर्व महसूस करता होगा हमारे खिलाड़ियों के ऊपर, और जो नहीं कर रहा है, जो कुछ अनर्गल बातें किया करते हैं खिलाड़ियों के बारे में, तो उनको एक साफ संदेश मैं कहना चाहूंगा कि जो खिलाड़ी हैं, अगर वो वहां पर अपना प्रदर्शन नहीं कर पाए और आप बोलने के इच्छुक हैं कुछ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर दम होता, आपके अंदर हिम्मत होती, तो आप जाकर के पार्टिसिपेट करते। खिलाड़ियों के बारे में बोलने से पहले अपने अंदर झांके कि आपके मन के अंदर कौन सा खिलाड़ी बैठा हुआ है जो कि जीत सकता है या नहीं सकता, उसके बारे में सोच ही नहीं सकता। कम से कम वो हारे तो जीतने की लालसा में हारे, किसी कमरे में बैठ करके, किसी कंप्यूटर में बैठ करके सिर्फ बातें करने से, या कहीं पर संगोष्ठी करके बैठने से किसी का आकलन करें, तो वो मेरे हिसाब से गलत है। और मेरे हिसाब से डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा कि वो सब बेकार लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं, कुछ कर्म नहीं करते। Thank you, sir. That is a perfect way to end all the trolls. No, like without any like prior knowledge, you were talking about these things. Like these guys deserve to get the bronze medal. At least they are like trained for 4 years. They are not good enough, something like that. So thank you for ending it in a perfect way. So sir, you have achieved so many things in your life, like till now. So what is the one thing that you are aiming to achieve in the next 5 years? Like something that you can disclose to us. See, there are so many plans about to be a coach, because of I started after Olympics coaching, and my one of student Shaurya Saini won bronze medal in Deaf Olympics in Rio, Brazil in 2022. So I'm having a sense of coaching
बिकॉज ऑफ मेरे अंदर सिखाने का एक कीड़ा है और वो शौक पता नहीं कब होगा, तो मैं सिखाता रहूंगा अपनी नॉलेज जो मैंने एक्सपीरियंस के साथ में अचीव किया है और जो मैं अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के माध्यम से NIS कर रहा हूँ। तो इसमें जो मैं स्पोर्ट्स साइंस को सीखूंगा तो फ्यूचर में अपने स्टूडेंट्स को, अपने खिलाड़ियों को दे सकूंगा। बट उससे पहले मैं एक खिलाड़ी हूँ और 2028 ओलंपिक के लिए शायद मैं भी ट्राई करूं। और आज का जो ये हमारा एक संगोष्ठी चल रही है, तो आप लोग सभी उस समय पे कह सकें कि दीपक कुमार वापस आ गया, कि दीपक कुमार ने कुछ दोबारा से करके दिखा दिया। तो नेक्स्ट 5 years में यू विल बी सीइंग लाइक टू बी ए कोच और टू बी ए गुड प्लेयर। सो बीच में नहीं रहूंगा मैं। Thank you, sir. Thank you. Hopefully, in the future, we'll get to interview one of your successful students, probably, just like this. Yes, Kavya, you can take over. So, what do you see as the future of sports and the role of military in promoting sports in India? सुनाई नहीं दिया मुझे। Future of sports and the role of military in promoting sports in India. देखिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री जितने भी फोर्सेस हैं, ITBP हो गया, SSB हो गया, CISF, CRPF एंड स्टेट पुलिस, कस्टम्स, इनकम टैक्स, तो इन सभी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टाइम पे वैकेंसीज निकालती रहती है कि जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं हमारे, तो वो तो अच्छे लेवल पे, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबसे पहले उनका ग्रैब करती है। बट जो बच जाते हैं, जो नेशनल लेवल के प्लेयर होते हैं, नेशनल लेवल के मेडलिस्ट होते हैं, तो दे आर कंडक्टिंग सम ऑफ ट्रायल्स एंड दे आर रिक्रूटिंग देम। सो इन दिस केस फ्यूचर जो है हमारे स्पोर्ट्स का, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रुझान खेल की तरफ बढ़ा है कि जितने ज्यादा, क्योंकि देखो डिफेंस हो या बेल्ट वाली जितनी भी नौकरी हैं अपनी, उनके अंदर डिसिप्लिन सबसे पहले हुआ करता है। तो जो एक इंसान डिसिप्लिन वे में कार्य कर सकता है, तो वो डिसिप्लिन वे में स्पोर्ट्स भी कर सकता है, चाहे वो स्पोर्ट्स एथलेटिक्स हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो रेसलिंग हो, कबड्डी हो, शूटिंग हो, व्हाटएवर। तो मिलिट्री के अंदर स्पोर्ट्स कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ, अगेन मैं दोहराना चाहूंगा कि कुछ अव्वल दर्जे के पागल हम उस डिफेंस में रहते हैं, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, चाहे वो दीपक कुमार हो, चाहे वो अपने शॉर्टपुट वाले तूर हो नेवी से, और भी पता नहीं कितने सारे खिलाड़ी जो डिफेंस से खेलते हुए डिफेंस का नाम रोशन कर रहे हैं। और हाल ही 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इंडियन एयरफोर्स को दिया कि हमारे जैसे खिलाड़ियों ने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया था। उससे पहले आर्मी को भी दिया था, उससे पहले नेवी को भी दिया था। तो टाइम टाइम पे और जिस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाड़ी अच्छा करते जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अवार्ड भी मिलता रहता है। और उसी मोटिवेशन को लेकर के जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, वो स्पोर्ट्समैन को रिक्रूट करते रहते हैं और अच्छे लेवल का खिलाड़ी बनाते रहते हैं। तो आई बिलीव कि जो हमारा स्पोर्ट्स का फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो सिविल हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स और स्टेट्स की स्कीम इतनी अच्छी चल रही हैं कि हर एक खिलाड़ी को ग्रास रूट लेवल पे मदद मिलती है, जिससे कि वो अपने स्ट्रगल टाइम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपने किट, गियर, कोचेज वगैरह के जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम कर सके। Thank you, sir. Thank you for answering a question in brief. Okay, let me ask a fun question, sir. So when it comes, actually in sports, most of the athletes have something called pre-match routine. You know, if I do this, if I comb my hair like this, I'll perform well today. If I do like this specific thing, I'll perform really well today. So do you happen to have any such special routine or something that brings you charm? I mean, like charm to you? I'm not having such kind of funny answer, but I want to mention about whenever I was not able to reach that much of a score, so I was giving myself punishment as well. If you will not achieve this much of a score, you have to run 10 kilometer in a row up to 1 week, so that your body, your mind will understand about the punishment and you will not repeat the same mistake in future. So I was having some self-discipline things, and due to that self-punishment or discipline things, I was able to reach so many podiums for medals and as well for India. Of course, sir. Of course. So there's one question from our student that
What about recovering from injuries during sports? Because sports is such event where injuries are very, like, they go hand in hand together. Yeah, definitely. Because of one step of injury, one step of athlete. So they are going eventually with the same time. If someone wants to prevent from injury, and they have to assessment about their body, because of maybe injury is coming due to less flexibility in their body, and due to improper program of physical and all, so they are facing some injuries. So if you want to prevent from the injury yourself, so you have to make yourself flexible, and there are so many flexible exercises, and you have to go for some assessment, sports assessment, so that you can be like injury free. In short, I can say, because of I can show my book also. I was having same topic in sports science, and I was writing continuously. So this is the big chapter for how to be injury free. This is the strength and conditioning, and I was writing this, and again it was like flexibility and all. So I was continuously writing about how to be injury free. Flexibility started again, and I was continuously giving the examples how flexibility is working with the body and all. So if someone is having stiffness, if someone is having tight muscles, so it will give definitely injury to the body, because of range of motion is not good. If someone is not able to bend and reach easily, so the tight muscles in hips and glutes, it will give the injury as well. So this is the big chapter, and if I will explaining about it, so time will be very short one. Yes, sir. Thank you for answering that So question. if someone So, wants to be injury free, I want to mention that go to Google, and you can find out so many aspects that are there, and you can see how you can be injury free. thank you, sir. Thank you for that addition. So, like one of our viewers, Anurag So Pandey, is Rahul, asking. I think we should take the questions from audience now. Yes, yes. I'm going to ask Anurag's question. Bhaiya. Okay. Yeah. So Anurag Pandey is asking, सर सबके ओके सर सबसे वर्स्ट डे में खुद को मोटिवेट कैसे रखते हैं? देखिए, बेसिकली मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सबसे वर्स्ट डे जो हम दुनिया का बोलते हैं, 2018 में जब मैं एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स गया था, तो उस समय पर मेरी बायोग्राफी में लिखा गया था कि भाई आप किससे मोटिवेट होते हैं। तो मैंने मेंशन किया है वहाँ पर स्पेशली कि जितने भी पैरा एथलीट वर्ल्ड के हैं, मैं उन सभी से इंस्पायर होता हूँ। तो जिनका भी ये क्वेश्चन था, मुझे उनसे ये पूछना है कि क्या उनके जीवन में उनसे भी ज़्यादा खराब समय चल रहा है? जो अपने आप उठ करके चल नहीं सकते, जो अपने आप उठ करके खा नहीं सकते, जो नहा नहीं सकते, जो कहीं पर ट्रैवल करना है, जा नहीं सकते, और फिर भी मन के अंदर वो चला रहे हैं कि मुझे इंडिया की टी-शर्ट कमानी है, मुझे इंडिया की टी-शर्ट पहननी है, मुझे इंडिया के लिए मेडल लेना है। तो आई थिंक हमें मतलब कि अपने से निचले वाले स्तर पर, बिकॉज़ ऑफ आप लोगों ने सभी ने अपने जीवन के अंदर एक चीज़ अनुभव की होगी कि भिखारी कभी भी भिखारी से भीख नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? बिकॉज़ ऑफ कि उसको पता है कि उसके पास में है ही नहीं। तो जैसा कि काव्या मैम ने भी बोला था कि समस्याएँ उसी के पास में आती हैं जिसके पास में समाधान होता है। तो भगवान उसी इंसान को चूज़ करता है जिसके पास में लड़ने की क्षमता होती है, जिसके पास में उस समस्या को सुचारू रूप से बाहर करने की क्षमता होती है। तो अगर उनके पास में कोई ऐसी समस्या या वर्स्ट डे आया है, तो यू आर द लकी वन, यू आर द हैविंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द गॉड कि आपको किस प्रकार से उस समस्या को हैंडल करना है और उस समस्या से कैसे बचना है। मेरे जीवन के अंदर भी बहुत सारी समस्याएँ आई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी समस्या हो, सिर्फ नाम, जगह, परिस्थिति और परिवेश बदला करते हैं, समस्याएं सबके साथ में हुआ करती हैं। तो वर्स्ट डे में जब मोटिवेशन का अपना देखा जाए, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये है कि कोई एक इंसान सुबह उठ गया और सुचारू रूप से वो जीवन के कार्य कर रहा है।
मानता हूं कि किसी के जेब में पैसे नहीं होंगे, मानता हूं कि किसी के जीवन में मोटिवेशन नहीं होगा, बट क्या मोटिवेशन नहीं होने से हम सांस लेना छोड़ देते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं, पानी पीना छोड़ देते हैं? और जो इंसान खाना पीना छोड़ता है या जो सुसाइड अटेम्प्ट करता है, मैं उस इंसान से ज्यादा बुज़दिल उस इंसान को समझता ही नहीं हूँ, बिकॉज ऑफ कि उन्होंने किसी समस्या को सामने आते हुए अब डर गए और डरने के बाद में उन्होंने कोई ऐसा कदम उठा लिया जिससे कि भविष्य में उनके घर परिवार वालों को, माता पिताओं को या उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को कोई समस्या का सामना करना पड़े। तो वो तो इंसान फ्री हो गया, पर दूसरे के लिए समस्याएं पैदा करके चला गया, तो वो इंसान भी मर जाए क्या उस इंसान की तरह? तो समस्याएं सबके साथ में आती हैं, सिर्फ और सिर्फ जैसे एक तालाब में मछली हो और वो गंदगी करती हुई घूम रही है, तो विचार हैं हमारे, वो गंदगी कर रहे हैं हमारे दिमाग के अंदर। साइकोलॉजी का एक पार्ट है कि विचार हमारे दिमाग के अंदर गंदगी फैला रहे हैं और हम उस गंदगी से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उस मछली को थकने का वेट करो, जब पानी शांत हो जाए तो उस मछली को निकाल करके फेंक दो। तो दिमाग के अंदर भी उन विचारों को उछलने दो, और एक समय के बाद में जब वो शांत हो जाए तो उस विचार से पूछो कि भाई तेरा डिस्टर्ब करने का क्या तरीका था और क्यों था। यूज का, अगर कोई थॉट यूज का है तो उसको रखो मन के अंदर, नहीं है तो उसे निकाल दो। तो जैसे फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हाँ अभी जी। हमारे विश्वकर्मा जी का एक क्वेश्चन है कि आपने क्या स्ट्रैटेजीज यूज किए जो आपके इतने मतलब सिचुएशन में आपको काम और कंपोज रखा? देखिए, एक सीधा सा एक बात कहना चाहूंगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। तो अगर शरीर के अंदर कहीं पर कोई दर्द है, दुख है, तो मन भी शांत नहीं रह सकता। और रही बात के फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ में मेंटल स्ट्रेंथ कैसे काम करती है, जैसा कि मैंने बोला कि शरीर अच्छा रहेगा तो हम शरीर से फ्री हो गए, अभी मेंटल स्टेटस के ऊपर या मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है। तो अभी एक क्वेश्चन आया था बीच में कि रिलेटिव्स के जो टॉन्ट होते हैं उनसे हम कैसे बचें और उनको हम कैसे जवाब दें। तो ऐसा नहीं है कि दीपक कुमार को टॉन्ट नहीं मिले, ऐसा नहीं है कि नीरज चोपड़ा को टॉन्ट नहीं मिले, ऐसा नहीं है कि मनु भाकर को टॉन्ट नहीं मिले। ऐसा कोई भी खिलाड़ी अछूता नहीं है और जीवन में कोई भी अछूता नहीं रहता। माँ बाप भी अपने पेट से पैदा जो करते हैं ना, वो भी यूं कह देते हैं कि तेरे बस की कुछ नहीं है। तो हम रिलेटिव्स को तो बहुत दूर की सोचें कि हमारी बुआ ने, हमारे फूफा जी ने, हमारे मामा ने, हमारे चाचा ने, हमारे ताऊ ने हमें कुछ कह दिया कि समय खराब हो रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, वट जो भी उनका अपना तरीका होता है। तो डोंट मेक देम योर लाइफ स्विच बटन्स, कि जब वो चाहें ऑन कर दें और जब वो चाहें ऑफ कर दें। तो उनके यूज करने से हमारे दिमाग की बत्ती जलनी और बुझनी नहीं चाहिए। अगर वो ऐसा हो रहा है तो वही जो रिलेटिव्स है ना, वो बच्चा जब कामयाब हो जाता है तो कामयाब होने के बाद में वही रिलेटिव्स आकर के क्या बोलते हैं कि हम तो इसको मोटिवेट करने के लिए बोलते थे, हमने तो बोला ही इसलिए था कि ये कुछ करे, इसके मन के अंदर आग लगे, तो इसलिए हमने इसको बोला था। और फिर वो क्या करते हैं कि भाई तू बेटा कामयाब हो गए, हाँ जी कामयाब हो गया, तो अपने भाई को भी देखना जरा ये क्या कर रहा है। अपने बच्चों को उनके ऊपर थोपने लग जाते हैं कि बुआ का बच्चा हो, चाहे मामा का हो, चाहे ताऊ का हो, चाहे चाचा का हो, सब उनके तरफ आ जाते हैं कि एक चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण के थ्रू कि अपने भाई बहन को भी कुछ ऐसा रास्ता बता कि ये भी कामयाब हो जाए। पर जब आप टॉन्ट मार रहे थे तो आपके बच्चों को टॉन्ट नहीं मिल रहा था। आपके टॉन्ट ने किसी बच्चे को अगर मोटिवेट कर दिया और वो जीत गया या कहीं पर पहुंच गया, बिकॉज ऑफ आई एम द लाइव एग्जांपल इन दैट, कि मेरे गांव के अंदर मेरे घर परिवार वालों ने भी ये बोला था कि ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं और कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं। जब एशियन गेम्स का मेडल आया तो वही सारे के सारे कि एक फोटो मेरे साथ खिंचवा लो भाई। तो वो समय लेकर के आना है कि जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो अपनी कही हुई बातों को वापस लें, कि हमने तो इसको मोटिवेट करने के लिए बोला था, डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोला था। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो मेरी इन बातों को
थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा और उनको जवाब देने के बजाय अपने कर्म से जवाब दीजिएगा, सो दैट वो कर्म ही है जो उनका मुंह बंद कर सकता है, और अपने आप को उनके द्वारा बनाया हुआ कठपुतली नहीं बनना है कि जब वो चाहें तो हमारे हाथ पैर हिलें, जब वो चाहें तो हम खाएं, जब हम चाहें तो रोएं। ऐसा उनके हिसाब से नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमारा कर्म ही उनके लिए उनका मुंह बंद करने के लिए जवाब हुआ करता है। Thank you for answering the question, sir. So, Preeti has a question. She wants to know what is the eligibility to appear in the Olympics and represent India in the Olympics. दोबारा करेंगे, बताइए। Sir, Preeti Mohan Sahu wants to know how to appear in Olympics. And Okay. To be Yeah. eligible for that. गेम चाहे कोई भी हो, सबका अपना अपना एक पड़ाव होता है पहला, कि जो लोकल क्लब्स होते हैं या लोकल एकेडमीज होती हैं उनके अंदर अपने आप को इनरोल किया जाता है। उसके बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो चैंपियनशिप्स हुआ करती हैं उसमें अपने आप को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। फिर स्टेट लेवल की चैंपियनशिप होती हैं, फिर प्री नेशनल, इंटर स्कूल, नेशनल और यूनिवर्सिटी लेवल की जो चैंपियनशिप होती है उनके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ता है। उसके बाद में फिर हम नेशनल पार्टिसिपेशन के लिए जा सकते हैं। नेशनल खेलने के बाद में फिर वहां पर सिलेक्शन ट्रायल्स हुआ करते हैं, जो भी अलग अलग एसोसिएशन या फेडरेशन करवाते हैं। तो जो उन सिलेक्शन ट्रायल्स के अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हुआ करते हैं, तो वो फिर इंडियन टीम के लिए जाते हैं, और इंडियन टीम में जाने के बाद में वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप या कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह। तो शॉर्ट ऑफ कुछ कॉम्पिटिशन्स ऐसे होते हैं इनके अंदर, जब ओलंपिक साइकिल स्टार्ट होता है उनके अंदर ओलंपिक कोटा प्लेस हुआ करता है कि हमें यहाँ से एक ओलंपिक कोटा प्राप्त होगा। तो वो हाई प्रायोरिटी कॉम्पिटिशन हुआ करते हैं अदर देन जो नॉर्मल वर्ल्ड कप वगैरह है या कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप वगैरह है। तो जब ओलंपिक कोटा प्राप्त हो जाता है तो फिर हर एक फेडरेशन अपने विद इन इंडिया, विद इन सम एथलीट्स, तो वहां पर वो फिर से एक ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं और फिर इंडियन टीम को डिसाइड करते हैं कि अब ओलंपिक में कौन कौन जाएगा। I hope that cleared your question, Preeti. Sir, एक और क्वेश्चन है कि how do you handle the fame that comes with being an Olympic athlete? देखिए, फेम अपनी जगह पर है, खिलाड़ी होना अपनी जगह पर है। बिकॉज ऑफ एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा कि वन ऑफ द वर्ल्ड चैंपियन इन चाइना, ही वाज इन 2012 आई थिंक, and the media persons were coming to them and they were asking how you are feeling about to be a world champion. So he told them, who world champion? So you are the world champion. I was last day world champion, but I am becoming again, I am preparing myself to be again world champion. वो ओलंपियन होना, फेम होना, वो पास्ट का है। आज मैं क्या हूँ, प्रेजेंट में क्या हूँ और फ्यूचर में क्या बनूंगा, वो मैं काम कर रहा हूँ, वो मैं सीख रहा हूँ। बिकॉज ऑफ कई सारे फेजेस होते हैं ओलंपिक तक पहुंचने के लिए, एंड आई एम हैविंग द सेंस हाउ टू रीच the Olympics and how to reach the Olympic podium as well. So fame is different thing, but the thing is I'm continuously busy with the competitions and all, and I'm learning the new things, enhancing my knowledge and enhancing my skills as well. Thank you, sir. Thank you for answering that in brief. So Himanshu has a general question. He says, okay, let me take a decision that I think is right, but my parents say it's not right. So in that point, what would you do, sir? Like in your position? See, there will be continuously difference in between the psychology of parents and the children's. So it will not match, and in earlier stages it was not matched as well, because of we are the youngsters and they are the older one now. So when they were in same age in earlier stages, they were not listening their parents as well. So but the thing is, I want to mention about it, you have to listen about your parents because they are having the experience of life and they have seen so many peoples like the age of you. बिकॉज ऑफ अगर हम उनकी सलाह, बिकॉज ऑफ हम उन्हीं के परिवेश से निकल करके या उन्हीं के सपोर्ट से तो कुछ कर सकते हैं ना। जब अपना सपोर्ट, आप अधिकारी बन जाओ, पीसीएस ऑफिसर बन जाओ या यूपीएससी क्लियर कर लो, जो करना है अपने जीवन के अंदर करो, बट एज ए पेरेंट्स उनके मन के अंदर भी एक डर होता है, अगर कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा। तो
तो उनकी जो बातें हैं उनको सुनना भी जरूरी है। मानता हूं कि भाई सुनना सबका चाहिए, करना अपना अपना चाहिए, बट मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि जितनी 10 बातें हम सुनते हैं उनके अंदर एक बात तो अच्छी होती होगी, तो सिर्फ उस बात को ही ग्रैब कर लो, सो दैट 10 बातों में अगर एक एक बातें भी हमने ली तो हमारी एक लाइन लाइफ को अच्छा चलाने के लिए रह गई, और वही हमारे लिए मूलभूत सूत्र हो जाता है कि हमें अपने पोडियम तक या अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। तो पेरेंट्स का बोलना भी ठीक है और कहीं ना कहीं उस बच्चे का भी बोलना ठीक है, बट सामंजस्य बैठा करके चलना पड़ेगा कि किस प्रकार से दोनों की जो इच्छा है कि बच्चे को कामयाब बनना है और अपने बेटे को कामयाब बनाना है, तो दोनों को मिल करके काम करना पड़ेगा। जो फीलिंग है अपने माता पिता के साथ में शेयर करो, उनसे कुछ छिपाओ मत, बिकॉज ऑफ उनसे नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे, बिकॉज ऑफ आजकल जो समय चल रहा है ना, वो समय ऐसा है कि माता पिता से तो बात नहीं कर पाते, दोस्तों को ढूंढते हैं। दोस्त अगर उसी लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी का मिला तो ठीक, अगर वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का मिला तो हमारा जीवन खराब हो जाता है, गलत रास्तों पे लेकर के चला जाता है। तो बाहर ना जाकर के सबसे पहले अपने पास देखो। अगर हमें शॉपिंग करने के लिए जाना है तो हम पहले अपने दोस्त से नहीं पूछेंगे, पहले अपनी पॉकेट के अंदर देखेंगे कि मेरे पास कितना पैसा है। अगर हम अपने दोस्त की पॉकेट के ऊपर ही डिपेंडेंट होकर के जा रहे हैं और वहां जाकर के पता लगा कि दोस्त की पॉकेट में कुछ नहीं लेकर के आया, तो फिर तो हम खाली हाथ आएंगे ना। तो पहले अपने पास जो अपने माता पिता हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा भला आप लोगों का कोई नहीं सोच सकता है, तो इसलिए जो भी कंसर्न करना है अपने माता पिता से जरूर करना, बिकॉज ऑफ के फ्यूचर में कहीं रिग्रेट ना तो उनको रहे कि हमने उनकी बात नहीं सुनी, और ना बच्चे को रहे कि मैंने अपने माता पिता की बात नहीं सुनी। Thank you, sir. That was an insightful journey. With this, we request the participants to stay. But sir, that was really a great time talking to you. This was JW Deepak Kumar for you guys. Your experience, sir, was extremely important for today's people. अंत में एक बात कहना चाहूंगा, इन फ्यूचर आप लोगों को कभी भी कोई गाइडेंस की जरूरत पड़े तो देवाशीष सर के पास में, हिमांशु सर के पास में, सबके पास में ऑलमोस्ट मेरा नंबर है। तो इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं, फेसबुक पे भी हूँ, और कहीं से भी देखो इंसान ढूंढना चाहे तो किसी को भी ढूंढ सकता है। तो कभी भी आप लोगों को किसी भी तरीके की गाइडेंस स्पोर्ट्स से रिलेटेड चाहिए हो, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो हम कोर्स कर रहे हैं तो मेरे साथ में बहुत सारे NIS कोचेस बनेंगे जो अलग अलग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के हैं, तो उन सब से मेरी दोस्ती 100% होगी। और बैचमेट होना होता है, चाहे हम 10 साल बाद 20 साल बाद याद करें तो बैचमेट खड़ा मिलेगा हमेशा। तो जब भी कभी आप लोगों को जरूरत पड़े तो बेझिझक याद कीजिएगा, क्योंकि रोशनी की हर एक किरण में दीपक का आगाज होता है। रोशनी की हर एक किरण में दीपक का आगाज होता है। अंधेरा चाहे कितना घना हो, सिर्फ एक किरण का मोहताज होता है। जिंदगी एक संघर्ष है उम्मीद की किरण के लिए। जिंदगी एक संघर्ष है उम्मीद की किरण के लिए। तपना और जलना जरूरी है कंकड़ से स्वर्ण बनने के लिए। मिल ही जाती है मंजिल हौसला अगर साथ हो। मिल ही जाती है मंजिल हौसला अगर साथ हो। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा कि किस प्रकार से मैं कार्य कर रहा हूँ, कि मिल ही जाती है मंजिल हौसला अगर साथ हो। फिर अंधेरे से क्या गम जब दीपक तेरे साथ हो। फिर अंधेरे से क्या गम जब दीपक तेरे साथ हो। Thank you so much for your time, sir. Thank you so much for those words. To be very honest, we like this 1 hour passed just like this because of your enlightening words. All the very best for your future endeavors. Okay, so already all of us know what you're going to do in the next 5 years. Hopefully, if you want to become a coach, all the very best for that. And if you're going to be a player and if you're going to represent India in 2028 Olympics, I'll definitely tell my like parents that like this is the same person I interviewed 4 years back. So Definitely. all the very best for that, sir. Looking forward to your presence in the Olympics. Thank you. Jai Hind. Thank you. Okay. On behalf of the IIT Madras community and our Spotify and Balidan Club, we extend our heartfelt thanks for your time and for being a part of this enlightening session. Thank you, sir. Jai Hind.